کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے۔ تب فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا انسان بہت بدکار ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ انسان کو غصہ اور خواہش دی گئی ہے جس سے وہ گناہ زیادہ کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ماں جو تتلو الشیاطین، پڑھتے تھے شیطان، علی میں ملکی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی، وما، اور نہیں، کفارہ کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین، اور لیکن شیطانوں نے، کفروا، کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما، اور جو انزل، نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت وماروت، اور ماروت، وما، اور نہیں، یعلمانی، وہ سکھاتے تھے، من احد، کسی کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقولا، وہ کہہ دیتے، انما نحن، بے شک ہم تو صرف، فتنۃ، آزمائش ہیں، فلا، پس نہ، تکفر، تم کفر کرو، فیتعلمون، پس وہ سیکھ لیتے، منہما، ان دونوں سے، ما، جو، یا جس سے، یفرقون، وہ جدائی ڈالتے، بہی، اس سے، بین المرء، درمیان خاوند، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے، وما ہم، اور نہیں وہ، بالضارین، نقصان پہنچانے والے، بہی، اس سے، من احد، کسی کو، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ویتعلمون، اور وہ سیکھ لیتے، ما، جو، یضرہم، نقصان پہنچائے انہیں، ولا، اور نہ، ینفعہم، نفع دے انہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عالموا، وہ جان چکے، لمن اشتراہ، جس نے یہ خریدا، ما لہو، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، والا بئسا، اور البتہ برا ہے، ما شروا، جو انہوں نے بیچ دیا، بہی، اس سے، انفسہم، اپنے آپ کو، لو، کاش، کانوا، ہوتے، یعلمون، وہ جانتے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان سے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطانوں نے یہ کتابیں نکال کر لوگوں سے جھوٹ ہی کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ ان کے نیک لوگوں نے اور علماء نے تو اس سے انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو سلیمان علیہ السلام کا علم سمجھ کر اس کو سیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا۔ یہ پورا واقعہ انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ماں جو تتلو الشیاطین، پڑھتے تھے شیطان، علی میں ملکی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی، واتبعوا، اتباع سے بنا ہے جس کے معنی ہے کسی کے پیچھے چلنا، یہاں پیروی کرنا مراد ہے۔ ماں سے مراد جادو کی کتابیں یا ان کے منتر ہیں۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ شیاطین سے مراد یا تو خبیث جن ہیں یا ان سے خبیث انسان مراد ہیں۔ شیطان شطن سے بنا ہے جس کے معنی ہے فساد اور فریب۔ ہر فساد کرنے والا اور ہر فریب کرنے والا شیطان ہے، یعنی انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں لوگوں کو بتاتے تھے۔ یا معنی یہ ہیں کہ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے سب کچھ جادو کے زور پر حاصل کیا۔ ملکی سلیمان سے یا ان کی ظاہری بادشاہت مراد ہے، یا ان کی وحی مراد ہے، یا پھر ان کی نبوت مراد ہے، اور یا ان کی شریعت مراد ہے۔ رب تعالیٰ ان کی برات فرماتا ہے، وما، اور نہیں، کفارہ کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین، اور لیکن شیطانوں نے، کفروا، کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ اکثر جادو میں کفر ہوتا ہے یا اس میں کفریہ شرائط پائی جاتی ہیں، یا جادو کرنا کفر ہے، یعنی جادو کرنا کافروں کا کام ہے، اور کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے اس لیے وہ جادو کر سکتے ہی نہیں۔ جب جادو اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا تو جادو اور نبوت میں کیوں کر اجماع ہوگا؟ دراصل انسانی اور جنی شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی یہ لوگ ان شیاطین اور جنوں سے جادو سیکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اعمال اور کمالات تو نہ دیکھے اور نہ ہی ان کی پیروی کرنے کی کوشش کی، بلکہ ان کا مال و دولت دیکھا، اور شیطان کے کہنے پر وہ سب کچھ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اعمال سے حاصل کیا تھا اس کی ہوس میں جادو سیکھا۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان جنات آسمان پر جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے جو آنے والے واقعات کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے۔ یہ جنات یہ باتیں سن کر کاہنوں کو سناتے تھے، مگر ان باتوں میں جھوٹ ملا کر سناتے تھے۔
फिर वो काहिन यानी नजूमी लोगों को ये खबरें पहुंचाते थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में क्योंकि जिन्नात से अमारात बनवाने, नहरें खुदवाने और किले बनाने का काम लिया जाता था। क्योंकि जिन्नात में इंसान से ज्यादा ताकत है, इसलिए वो इंसानों को अजीब अजीब करतब दिखाकर इन्हें हैरान किया करते थे। इंसान इनसे पूछते कि तुम ये अजीब काम कैसे कर लेते हो, तो वो कहते कि फला मंत्र और फला टोटके के जोर से लोग इनसे ये मंत्र और टोटके सीख लेते, बल्कि लिख लेते। हालांकि इन मंत्रों में कुफरिया और शिरकिया बातें होती, और जब इंसान ये मंत्र पढ़ते तो शैतान चुपके से कोई अजीब काम कर देते, जिससे इंसानों को यकीन हो जाता कि इन मंत्रों में बहुत असर है। यहाँ तक कि इन मंत्रों की किताबें तैयार हो गई। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसकी खबर लगी तो आपने वो सारी किताबें जमा फरमाकर संदूक में भरकर अपने तख्त के नीचे दफन करा दी और हुक्म दिया कि शैतानों को इंसानों से मुलाकात करने से रोक दो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इंसान शैतानी शक्ल में आया और इंसानों से बोला कि तुम्हें खबर है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी बादशाहत कैसे मिली? सिर्फ जादू से मिली, जिसकी किताबें उनके तख्त के नीचे दफन हैं। अगर तुम भी इन किताबों पर अमल करोगे तो उनकी तरह बादशाह बन जाओगे। फिर क्या था, इन लोगों ने जमीन खोदकर वो संदूक निकाला और इन पर लिखे जंतर मंत्रों पर अमल किया, क्योंकि शैतान चाहते थे कि इंसान हमारी पूजा करें। इन मंत्रों में बुत परस्ती की शराइत थी और शैतानों से मदद मांगने के अल्फाज थे। जब लोग ये अल्फाज पढ़ते तो शैतान इनके काम कर देते। रफ्ता रफ्ता सारी कौम ने अपनी किताब को छोड़ दिया और जादू में फंस गए, और इनमें ये मशहूर हो गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह ना थे, सिर्फ जादूगर थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना पाक तक यही मशहूर रहा। इस आयत ने असली बात बताई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये इत्तेहाम दूर फरमाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो पैगंबर हैं और जादू या तो खुद कुफर है या ये कुफार का काम है। इतने बड़े पैगंबर कुफर कैसे कर सकते हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफर नहीं किया, बल्कि शैतानों ने कुफर किया। शैतानों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौका पाकर लोगों को जादू सिखाया और इल्ज़ाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाया। वो इस इल्ज़ाम से बरी हैं और अल्लाह के मकबूल पैगंबर हैं। वमा, और जो उन्जिला नाजिल किया गया अलल मलाकैनी, दो फरिश्तों पर, बिबाबिला बाबल में, हारूता हारूत व मारूत और मारूत, यानी शैतान जादू और वो चीज सिखाते थे जो बाबल शहर में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारी गई, या पैरवी की इन लोगों ने शैतानों के बताए हुए जादू की और उस चीज की जो हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया, या वो जादू जो हारूत और मारूत को सिखाया गया था, क्योंकि उन पर जादू वही के जरिए नहीं आया था, बल्कि कुदरती तौर पर इनके दिल पर अलका हुआ। यानी जादू उतारा गया इन दो फरिश्तों पर जो दीगर फरिश्तों के बादशाह हैं। ये दोनों फरिश्ते जादू जानते हुए आसमान से बाबुल शहर में उतरे। ये जादू उन्होंने बाबुल शहर में नहीं सीखा। बाबुल कूफा और इराक का एक बड़ा शहर है। इसको बाबुल इसलिए कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती से उतरकर पहले इसी जगह पहुंचे और यही शहर बनाया और इसका नाम समानीन रखा। रब की शान के यहाँ एक दिन में 80 जुबानें जारी हो गईं, किसी की अरबी, किसी की फारसी वगैरह। बाबुल लफ्ज़ बलबला से बना है जिसके मायने है मुख्तलिफ होना। तब से इस शहर का नाम बाबुल हुआ, यानी इख्तलाफ की जगह। वमा, और नहीं, युअल्लिमानी, वो सिखाते थे, मिन अहदिन, किसी को, हत्ता, यहाँ तक के, यकूला, वो कह देते, इन्नमा नहनु, बेशक हम तो सिर्फ, फितना, तुम आजमाइश हैं, फला, पसना, तकफुर, तुम कुफर करो। यानी वो दो फरिश्ते शैतानों की तरह जादू की रगबत नहीं देते थे और किसी से जादू नहीं कराते थे, बल्कि जो खुद ब खुद जादू सीखने आ जाता तो उसको भी फौरन नहीं सिखाते थे, बल्कि उनसे कह देते थे कि हम बंदों की आजमाइश के लिए हैं, ताकि जाहिर हो जाए कि कौन जादू से बचता है और कौन इसको इख्तियार करता है। यानी हमारा जादू सिखाना जवाज की अलामत नहीं, हम जादू को जायज करने वाले नहीं, बल्कि सिर्फ आजमाइश का जरिया हैं। फला, पसना, तकफुर, तुम कुफर करो। यानी वो दोनों फरिश्ते फरमाते थे कि तुम इस जादू को सीख कर या इस पर अमल करके कुफर इख्तियार ना करो। अगर वो जादू सीखने जाने वाला ये सुनकर बाज आ जाता तो ठीक, वरना फयतअल्लमूना, बस वो सीख लेते, मिनहुमा, उन दोनों से, माँ, जो या जिससे, युफरिकूना, वो जुदाई डालते, बिही, इससे, बैनल मरी, दरमियान खावंद, व ज़ौजिही, और उसकी बीवी के। यानी फिर वो इन दोनों फरिश्तों से जादू सीख लेते थे, वो पुरतासीर जादू जिससे मर्द और औरत में जुदाई डाल देते थे, या तो इन दोनों में दुश्मनी डालकर, या मर्द औरत के काबिल नहीं रहता। दोनों सूरतों में वो अपनी बीवी से अलहदा रहता। जादू का इलाज ये है कि जो कोई सुबह शाम आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने हाथों पर दम करे और सारे जिस्म पर हाथ फेरे, वो इंशाल्लाह जादू से महफूज रहेगा। दूसरे ये कि जिस शख्स को जादू हो गया हो वो दरिया का पानी घड़े में भरकर लाए और इस पानी पर सूरह फलक और सूरह नास 11-11 बार पढ़कर दम करके इससे गुस्ल करे, इंशाल्लाह सेहत होगी।
हारूत और मारूत का किस्सा इस तरह है कि हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए। तब फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज किया कि मौला इंसान बहुत बदकार है। रब ताला का इरशाद हुआ कि इंसान को गुस्सा और ख्वाहिश दी गई है जिससे वो गुनाह ज्यादा करता है। अगर ये चीजें तुम्हें मिलें तो तुम भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले कि मौला हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे, ख्वाह कितना ही गुस्सा और ख्वाहिश हो। रब का हुक्म हुआ कि तुम अपनी जमात में से आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते छांट लो, हम इनको गुस्सा और ख्वाहिश दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनाचे हारूत और मारूत जो बहुत ही इबादत गुजार फरिश्ते थे इंतखाब में आ गए। अल्लाह ताला ने इन दोनों फरिश्तों को गुस्सा और ख्वाहिश देकर बाबुल शहर में उतारा और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करना और रोजाना इसमें आजम के जरिए आसमान पर आ जाया करना। ये दोनों फरिश्ते 1 महीने तक ऐसे ही करते रहे। इतने अरसे में इनका अदल और इंसाफ मशहूर हो गया और इनके पास मुकदमे आने लगे। एक दिन एक निहायत हसीन और जमील औरत जिसका नाम जोहरा था अपने खामद के खिलाफ मुकदमा दायर करने इनके पास आई। ये दोनों इसे देखते ही इस पर आशिक हो गए और इससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उसने कहा, पहले आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शोहर को कत्ल करो। उन्होंने इनकार किया तो वो चली गई, मगर इनके दिल में उसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। जब ये दोनों उसके घर पहुंचे तो वो बोली, या तो आप मुझे इसमें आजम सिखा दें, या बुत को सजदा करें, या मेरे शोहर को कत्ल करें, या शराब पी लें। इन फरिश्तों ने सोचा कि इसमें इलाही खुदा का राज है और इसको जाहिर करना बहुत जुल्म है। बुत परस्ती करना शिरक है और कत्ल हकुल इबाद है। लाओ शराब पी लेते हैं। चुनाचे उन्होंने शराब पी ली। जब शराब पीकर मस्त हो गए तो उसने इनसे बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शोहर को कत्ल भी करवा लिया और इसमें आजम भी पूछ लिया। वो तो इसमें आजम पढ़कर आसमान पर पहुंच गई और उसकी शक्ल जोहरा सितारे की तरह हो गई। जब इन फरिश्तों का नशा उतरा तो वो इसमें आजम भूल चुके थे और अपने किए पर शर्मिंदा हुए। तब फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और जमीन वालों के लिए मगफरत करने लगे। फिर ये दोनों फरिश्ते हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और शफाअत के तालिब हुए। आपने इनके हक में दुआए मगफरत की। बहुत रोज के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको इख्तियार दीजिए, या तो ये दुनिया का अजाब कबूल कर लें या आखिरत का। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह का हुक्म पहुंचाया। इन्होंने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के नबी, दुनिया का अजाब फानी है और आखिरत का बाकी रहने वाला है, हमको दुनिया का अजाब मंजूर है। चुनाचे हक ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों को बाबल के कुएं में उल्टा लटका दें। इस कुएं में आग भड़क रही है और ये दोनों फरिश्ते लटके हुए हैं और फरिश्ते बारी बारी इनको कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से इनकी जुबानें बाहर लटकी हुई हैं। ये किस्सा हदीस की किताब में मरवी है और बाज लोगों ने हारूत मारूत को इस हालत में देखा भी है। वमाहुम, और नहीं वो, बिद्दौरीना नुकसान पहुंचाने वाले, बिही से, मीनाहदिन किसी को, इल्ला मगर, बिस्मिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, यानी जादूगर इस जादू से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। खुदा ने इस जादू में तासीर रख दी है जिससे वो नुकसान पहुंचा देते हैं। या मतलब ये है कि जादू रब ताला की इजाजत से असर करता है, इसलिए कभी असर करता है और कभी नहीं, और किसी पर असर करता है और किसी पर नहीं। अगर हर जादू असर करता तो तमाम जादूगर जादू के जोर से दुनिया पर राज करते, मगर ऐसा नहीं है। लिहाजा मोमिन को चाहिए कि वो हमेशा रब ताला ही से डरे कि सब उसी के ताबिया फरमान है। वयतअल्लमूना, और वो सीख लेते, माँ जो यदुर्रुहुम नुकसान पहुंचाए उन्हें, वला और ना यनफाउहुम नफा दे उन्हें, यानी जादू खुद जादूगर को बहुत नुकसान देता है जिसमें नफे का शायबा भी नहीं। जादूगर खुद जादू से बहुत नुकसान पा जाता है, दूसरे को नुकसान हो या ना हो, क्योंकि वो या तो इस जादू पर अकीदा रख के या कुफर के अल्फाज बोलकर काफिर हो जाता है, या ये कि जादूगर कभी कत्ल भी कर दिए जाते हैं और कभी एक दूसरे के मुकाबले में हलाक भी हो जाते हैं। गर्ज ये कि इस जादू में दीनी और दुनियावी बहुत नुकसान है। जादूगर ने अगर दूसरों को नुकसान दिया तो नफे के साथ, वो इस तरह कि अगर इसने किसी को जादू से नुकसान पहुंचाया तो जिस पर जादू हुआ वो या तो शहीद होकर मरा या इससे सब्र का सवाब मिला, मगर जादू करने वाले का दीनो ईमान तबाह हुआ जिसमें महज नुकसान है, नफा बिल्कुल नहीं। खुद जादूगर भी इस नुकसान से बेखबर नहीं, बल्कि वाला का दौर अलबत्ता तहकीक आलिमू, वो जान चुके, लामा निश्ता राहू, जिसने ये खरीदा, मालहू, नहीं है उसके लिए, फिल आखिराती, आखिरत में, मिन खलाक, कोई हिस्सा। यानी जादूगर ये जानते हैं कि जो कोई ईमान छोड़कर कुफर या आसमानी किताबें छोड़कर शैतानी बातें, या जो कोई कुरान छोड़कर जादू इख्तियार करेगा, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं।
वो कुछ दुनिया तो कमा लेगा मगर आखिरत में उसे कुछ नहीं मिलेगा। इन्होंने किताब इलाही से मुंह मोड़ा और जादू के शैदाई हुए। इनके इस किताब इलाही को छोड़ने और जादू इख्तियार करने को रब ताला ने खरीदो फरोख्त फरमाया। इनका ये सौदा घाटे का हुआ कि ये फायदेमंद चीज से हाथ धो बैठे और नुकसानदेह चीज ले बैठे। वाला बेसा और अलबत्ता बुरा है माशा रहू जो उन्होंने बेच दिया बिही से अंफुसहुम अपने आप को, यानी जिस जादू के बदले उन्होंने अपना ईमान बेचा वो जादू निहायत बुरा है कि इस जादू से इनके सारे पिछले अमाल बर्बाद हो गए और ईमान खत्म हो गया और ये जहन्नुम के हकदार बन गए। लव काश कानू वो होते या अलमून जानते, यानी काश वो ये बुराई भी जानते होते, यानी वो ये तो जानते हैं कि जादू में सवाब नहीं, काश वो ये भी जानते होते कि इसमें अजाब है और इससे आखिरत बर्बाद होती है। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।